So hello everyone and welcome back again to your channel which is Biology for Inquisitive Minds, and today I'm going to take the last you can say the second last topic, that is the hepatic portal system. And before this we have studied the various topics and it is available in my previous videos, you can watch it. So without wasting any more time, hepatic portal system का layman language में क्या मतलब होता है? Hepatic means in relation to the liver. Portal means a kind of circulation or the network, and system means it is a system wherein we have different we can say capillaries का जो network होता है. तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में द डायरेक्ट वेन्स ऑफ योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, क्योंकि द फूड वी ईट, द न्यूट्रिएंट्स वी गेट, इट गेट्स डिजॉल्व इन द ब्लड. सो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टमक और इंटेस्टाइन से एक वेन निकलेगी और वो आपके सुपीरियर वेना कावा में और इन्फीरियर वेना कावा में चली जाएगी. बेसिकली इन्फीरियर में जाएगी क्योंकि जो इन्फीरियर वेना कावा है उससे जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ से ब्लड निकल के जाता है एंड इट goes and it gets into your inferior vena cava, and from the inferior vena cava it goes to your right atrium. So basically what happens is, what is hepatic portal system is, the veins starting from the stomach and intestine do not directly convey the blood to the posterior or the inferior vena cava. The same thing I've told you. जो stomach है और जो intestine है डायरेक्ट इनसे veins निकल के posterior vena cava में नहीं जाती हैं. Although होता क्या है, the veins from the stomach, you see this blue color veins, this blue color arrows, they are actually the veins coming from your stomach and intestine area. What is actually happening here कि these different capillaries, they are joining together and they are forming a hepatic portal vein. Hepatic means liver, portal means these are the networks of different veins. So basically what is going to happen, these three we can say these three capillaries coming from your different parts of your stomach and your intestine, they are joining here together and they are forming a common hepatic portal vein. Portal क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन तीनों ने एक नेटवर्क बना के रखा है. उसके बाद now this is actually going inside the liver. लीवर के अंदर ये सब आपकी एंटर करेंगी, लीवर में जाके ये मर्ज हो जाएंगी and from the liver the main vein which is called the hepatic vein, it will come out from the liver, and this hepatic vein will directly go to your posterior vena cava, and posterior vena cava का जो blood है वो directly आपके right auricle में जाएगा. ठीक है, right auricle में right part में कौन सा blood जाता है, deoxygenated blood, और आपके left part में कौन सा blood जाता है, oxygenated blood. Always remember this thing. ठीक है, so this is that much easy. And in liver, hepatic portal veins, अब ये जो liver है, I have drawn liver for you. In the liver, the hepatic portal veins, ये different veins आ रही हैं, they breaks into capillaries. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये different आपकी capillaries में break हो रहा है, and a new vein. This पहले ये आपकी कैपिलरीज निकलेंगी स्टमक एंड इंटेस्टाइन से, वो जाएंगी एक हेपाटिक पोर्टल वेन बनाएंगी. ये हेपाटिक पोर्टल वेन जब लीवर में एंटर करेगी उसके बाद दोबारा से ये ब्रांच होके डिफरेंट कैपिलरीज बनाएगी. ये कैपिलरीज दोबारा से एक नई वेन बनाएंगी जिसे हम हेपाटिक वेन कहते हैं. नाउ व्हाई दिस हेपाटिक, बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू द लीवर. ठीक है, and now this hepatic vein will join the posterior vena cava, and so that the blood can go inside the posterior vena cava, and from that it can go inside the heart. Fine. Next topic comes is your pulse. So most of you must have we can say measure, कभी आपने की होगी अपनी पल्स रेट, क्योंकि हम नॉर्मल जब जैसे when we get a fever और जब भी किसी को बुखार आता है तो हम सबसे पहले पल्स चेक करते हैं. if it is not normal, if it is very fast, that means you're having some kind of we can say fever. और जैसे जब आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होता है या फिर अगर आपकी पल्स रेट बहुत ही धीरे है तो हम तब भी बोलते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आई है तुम्हारी बॉडी में, इसलिए तुम्हारा पल्स रेट कम है या फिर ज्यादा है. सो बेसिकली व्हाट इज दिस पल्स, व्हेन योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब हमने दो चीजें पढ़ी थी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायास्टोल कहते हैं. ठीक है, when the heart contracts, the elastic walls of arteries, we have also studied that arteries, it has your tunica externa, tunica media and tunica interna. और जो आपकी जो tunica externa है, जो सबसे outer layer है आपकी artery की,
इट हैज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, जो बीच वाली मिडल लेयर है उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं और वो इलास्टिक होती हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, then the elastic walls of your arteries they distend means they expand। क्यों expand होती हैं? क्योंकि देखो अब एक सिचुएशन इमेजिन करो जब सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के पास था, तो वेंट्रिकल उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वेंट्रिकल्स ने सारा ब्लड आपका आधा पल्मोनरी आर्टरी में और आधा आयोटा में दे दिया, तब वेंट्रिकल्स तुम्हारे क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। नाउ व्हेन द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल इज रशिंग टुवर्ड्स द आर्टरी, सो व्हाट इज एक्चुअली नॉर्मली गोइंग टू हैपन, दैट द इलास्टिक walls of the arteries they are going to get expand। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फोर्स ब्लड आ रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स से ब्लड वहां पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। So this distension can be easily felt by pressing your finger gently over an artery such as radial artery of the wrist on the side of the thumb। So the easiest example is this is your wrist, ठीक है। We always measure the pulse rate from here। ये थम है, थम के पास एक रिस्ट आती है। So this is basically the normal or we can say the journal way जिससे हम पता लगा सकते हैं हमारी डिफरेंट पल्स रेट का या फिर डिफरेंट आपकी बीट का, ठीक है। Then actually the counting of the pulse is indirectly the counting of the heartbeat। जितनी ज़्यादा पल्स आप गिनेंगे that means उतनी ही ज़्यादा उतना ही आप अपनी हार्ट बीट को मेजर कर रहे हैं। तो नॉर्मली आपकी जो पल्स रेट होता है, जैसे हम कहते हैं 1 मिनट में आपका 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट होता है, तो 1 मिनट में भी जो पल्स रेट होगा वो 72 टाइम्स ही आएगा। उससे कम या फिर उससे ज़्यादा दैट मीन्स योर बॉडी इज डीलिंग विद सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम or some kind of fever, ठीक है। The pulse rate or the pulse beat increase due to physical activity। If you are running, if you are doing some exercise, if you are jumping or if you are doing a vigorous exercise, at that time this pulse rate is going to get increased। Or if you are very happy or you are angry, then also this pulse rate is going to increase। If you are feeling very low, if your blood pressure is low, at that time the pulse rate will go down, it will decrease। So this was about your pulse। तो normally हम कह सकते हैं कि indirectly हम कह सकते हैं कि जितनी तुम्हारी हार्ट बीट है, जितना काउंट तुम्हारा हार्ट बीट का है, उतना ही काउंट तुम्हारी पल्स का है। और पल्स कब जनरेट होती है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सारा का सारा जो फोर्सफुली ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू बिल्कुल फ्लश हो जाता है, बिल्कुल वहां से निकल रहा होता है। एंड एट दैट टाइम जब आपकी वॉल्स हैं, जो वॉल्स इलास्टिक वॉल्स हैं, वो डिस्टेंड हो जाती हैं। और जब ये डिस्टेंड होती हैं तो मीन्स आर्टरीज से ब्लड फ्लो कर रहा है और ये सुपरफिशियली ऊपर आ जाती हैं। व्हेनेवर यू गोइंग टू टच देम और व्हेन यू गोइंग टू फील देम, फॉर एग्जाम्पल द रेडियल आर्टरी, यू गोइंग टू फील योर पल्स रेट, ठीक है। दिस वाज अबाउट योर पल्स। नेक्स्ट तुम्हारा आता है ब्लड प्रेशर। नाउ व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर? जैसे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पर्सन इज हैविंग अ हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। व्हाट इज एक्चुअली अ ब्लड प्रेशर एंड हाउ डू वी मेजर इट बेसिकली? एंड ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड का कोई प्रेशर होगा, ठीक है। सो इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज when it is flowing through them। जब एक ब्लड प्रेशर से आपका आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, एट दैट टाइम जब वही ब्लड आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। How can you measure a blood pressure? If you want to measure a blood pressure, firstly you need to know what is the systolic pressure and what is the diastolic pressure. So if you might have visited the doctor, then you might have seen that doctor uses a sphygmomanometer। Sphygmomanometer actually it's the instrument जिसमें आपके जो रीडिंग होती है वो मरकरी होती है। That is the readings are filled with the mercury, ठीक है। And we have a pump over there। We have we can say जो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आर्म्स में डॉक्टर्स बांधते हैं, फिर उसके बाद वो पंप करना स्टार्ट करते हैं एंड पंप करते हुए वो रीडिंग ऊपर तक आपकी जाती है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड सडनली दे रिलीज द प्रेशर एंड रीडिंग फॉल्स डाउन। सो यू नीड टू नो एक्चुअली व्हाट इज दैट प्रेशर, व्हाट इज दैट हाई रीडिंग एंड व्हाट इज दैट लो रीडिंग।
तो ब्लड प्रेशर में दो रीडिंग्स आती हैं. द फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड द सेकंड इज डायस्टोलिक प्रेशर. तो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी सिस्टोल आएगा दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन आएगी, जब भी डायस्टोल आएगा मतलब रिलैक्सेशन आएगी. सिस्टोलिक हमेशा अपर लिमिट होती है. अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो 120 अपर लिमिट होगी, मतलब वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और 80 आपका डायस्टोलिक यूनिट होगी. अब ये 120 क्या चीज आई? ये 120 है व्हेन योर फ्रेश ब्लड इज पुशिंग थ्रू द आर्टरी. Fresh blood is pushing through the artery when ventricle contraction takes place. Now imagine a situation, or just go back to the situation जब मैंने आपको समझाया था आपका circulation in the blood. Arteries में आपका blood आया, आर्टरीज ने वेंट्रिकल को ब्लड दिया. जब आर्टरीज ने वेंट्रिकल को ब्लड दिया तब आर्टरीज रिलैक्स कर गई और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया. क्यों? बिकॉज नाउ वेंट्रिकल इज हैविंग सो मच ऑफ द ब्लड. अब क्या होगा, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स कब होगा? जब वेंट्रिकल अपना ब्लड आपकी आर्टरीज में दे देगा. फॉर एग्जाम्पल राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी को और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा को, और अयोटा आगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज बनाता है. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पे, दैट टाइम व्हेन द फ्रेश ब्लड इज पुशिंग थ्रू द आर्टरीज, व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका पूरा का पूरा ब्लड आर्टरीज में दे देगा, बिल्कुल ऐसे फ्लो से दे देगा और वो रिलैक्स हो जाएगा, उस अपर लिमिट को हम सिस्टोलिक लिमिट कहते हैं या फिर सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. और डायस्टोलिक प्रेशर लोअर लिमिट आती है. जब वो डॉक्टर रिलीज करता है, उस प्रेशर को रिलीज करता है, और जो सबसे लोएस्ट रीडिंग आती है, वो लोएस्ट रीडिंग क्या होती है? मतलब वो जो आपका फ्रेश ब्लड था वो पूरा आर्टरीज को क्रॉस करके जा चुका है. इट इज रिकॉर्डेड व्हेन द वेव हैज पास्ड ओवर. तो डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट रीडिंग्स. ठीक है, तो सिस्टोलिक क्या होगा? जिस टाइम पे आपका जो फ्रेश ब्लड है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के उस टाइम पे वो आर्टरीज में जा रहा है, बिल्कुल फ्लो से जा रहा है. ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या? जब जो डॉक्टर रिलीज करता है और जो सबसे लोअर लिमिट आती है, जो लोएस्ट रीडिंग आती है, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक अडल्ट का 100 से 140 की रेंज में होता है. 100 to 140. दिस इज mmHg. Why I have written your mmHg? Hg that means it in relation to the mercury, क्योंकि उसमें मरकरी फिलअप होता है. डायस्टोलिक की रेंज होती है 60 to 80 mmHg. Now the normal blood pressure of the human being, normally it is your 120/80. It's mmHg. That means mercury. अगर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से, स्ट्रेस से या फिर किसी भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन से, इफ देयर इज अ राइज इन ब्लड प्रेशर अबव 140/90, इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, और नॉर्मल भाषा में हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर ब्लड प्रेशर. नाउ कमिंग टू योर टिश्यू फ्लूइड एंड द लिम्फ. तो लिम्फ के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि लिम्फ कंसिस्ट ऑफ योर ल्यूकोसाइट्स एंड WBCs होते हैं लिम्फ में, और ये डिफेंस का काम करता है. जब भी ये किसी कैपिलरी में होगा, द ल्यूकोसाइट्स और द लिम्फोसाइट्स दे विल ooze आउट एंड दे विल डू द डायपेडियासिस. नाउ व्हाट इज बेसिकली टिश्यू फ्लूइड इज? सो टिश्यू है तो दैट मीन्स टिश्यू के साथ ही इसका कोई रिलेशन होगा. ठीक है, The blood flows in the capillaries of the tissues. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लड है वो आपके आर्टरीज में है, वेन्स में और कैपिलरीज में भी है. ठीक है, बट टिश्यूज के पास और सेल के पास नॉर्मली हमारी कैपिलरीज ही जाके देती हैं, क्योंकि कैपिलरीज ही क्या करती हैं, मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन करती हैं. आपका ऑक्सीजन देंगी टिश्यूज को और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगी. ठीक है, तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है किसी कैपिलरी में टिश्यूज के पास, उसमें से प्लाज्मा वो चीज़ है जिसमें आपके सेलुलर काउंट्स नहीं होंगे, सेलुलर जैसे आपका RBC नहीं होगा, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे. ठीक है, और एक येलोइश फ्लूइड होगा. एट दैट टाइम प्लाज्मा एंड द ल्यूकोसाइट्स इज अ काइंड ऑफ योर WBC, दे विल लीक आउट. कहाँ से लीक आउट होंगे? कैपिलरीज से, क्योंकि कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है. ठीक है, और वो टिश्यूज तक जा रहा है. तो उस टाइम पे प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट दे विल लीक आउट थ्रू द वॉल्स and this fluid bathes the cell. जब आपके कैपिलरी से ब्लड फ्लो कर रहा है टिश्यू के पास, उसमें से जब प्लाज्मा और वहाँ पे प्रेजेंट ल्यूकोसाइट उस कैपिलरी से लीक कर जाते हैं उसकी वॉल्स के थ्रू,
और वो जाके पूरे के पूरे सेल को नहला देते हैं. दैट मीन्स पूरे सेल्स और पूरे टिश्यूज वहां पे दे आर बेदिंग इन दिस फ्लूइड. सो द सेल्स who are bathing in this fluid or the tissues who are bathing in this fluid, that is known as a tissue fluid, or we can call it intercellular, दो सेल के बीच का फ्लूइड, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर वाला फ्लूइड. सो दिस इज अ टिश्यू फ्लूइड. The cell absorb oxygen and other substances and give out carbon dioxide and other waste back into it. ये चीज़ मैंने कैपिलरीज के फंक्शन में भी समझाई थी कि इसमें से आप ऑक्सीजन की डिफ्यूजन भी करवा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन करवाएंगे. ऑक्सीजन की आउटवर्ड डिफ्यूजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की इनवर्ड डिफ्यूजन होगी. दैट्स इट. ठीक है. नाउ कमिंग टू योर लिम्फ. Now coming to the lymph and a lymphatic system. So lymph may be present in some kind of channels or the vessels or some kind of you can say your different system. So that is basically the system which consists of your lymph is called as your lymphatic system. So the tissue fluid, अब अभी हमने बात की थी टिश्यू फ्लूइड की. कौन सा फ्लूइड है जो कि आपका जिसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और जिसमें ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. Now if we talk about the lymphatic system, so the tissue fluid may be reabsorbed back into the blood vessels. हो सकता है कि कैपिलरीज में से दोबारा से वो रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में चला जाए. तो आधा जो है वो तो ब्लड वेसल्स में चला गया, बट मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड एंटर्स अनदर सेट ऑफ माइन्यूट चैनल्स. अब ये टिश्यू फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है? इस टिश्यू फ्लूइड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट है, इसमें आपके ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज आउट हो रहा है, इसमें आपके वी कैन से डिफरेंट प्रोटीन्स भी हो सकते हैं. ठीक है. तो most of the tissue fluid enters another set of minute channels which is called lymph vessels and wherein it is called lymph. जब यही टिश्यू फ्लूइड एक छोटे छोटे चैनल्स में चला जाता है जिनको हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं, और लिम्फ वेसल्स के अंदर जाके इस टिश्यू फ्लूइड का क्या नाम हो जाता है? लिम्फ. तो जब ये टिश्यू फ्लूइड किसी लिम्फ वेसल में चला गया, उसका क्या नाम दे दिया? उसका नाम दे दिया लिम्फ. लिम्फ में हमें पता है क्या क्या होगा. लिम्फ में ल्यूकोसाइट्स होते हैं. L for lymph and L for leukocytes, you will remember. इसमें कोई ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होते. 94% इसमें वाटर होता है और इसमें एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. दैट्स इट. लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं? तो वेसल्स इज यू कैन इमेजिन एज अ काइंड ऑफ वी कैन से ट्यूब्स. तो लिम्फ वेसल्स, व्हेन लिम्फ फ्लो इन दीज वेसल्स, जब लिम्फ वेसल में जो लिम्फ प्रेजेंट है, लिम्फ क्या है? एक टिश्यू फ्लूइड ही है जिसमें क्या था? प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स थे. Lymph flow in these vessels due to contraction of the surrounding muscle. Although this is present in your lymph vessel, but जब आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तब ये वेसल्स में और ज्यादा तरीके से फ्लो करता है. ठीक है. The lymph vessels which is containing the lymph now drain it to the lymph nodes. अब ये lymph nodes क्या होते हैं? जैसे तुम्हारे we can say it's a compact structure and it is present in different parts of your body. ठीक है. तो लिम्फ नोड्स को क्या दे देंगी? लिम्फ वेसल्स लिम्फ दे देंगी. ठीक है. फ्रॉम वेयर द फ्रेश लिम्फ channel arises and pour this lymph into the major anterior veins which is close to the entry into the right auricle and again it goes back to the circulation. तो देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये टिश्यू फ्लूइड? ये ब्लड कैपिलरी से स्टार्ट हुआ था. ठीक है. आधा ये आपका दोबारा से ब्लड वेसल्स में चला गया था, रीएब्जॉर्ब हो गया था. आधा ये क्या किया? इसने छोटे छोटे चैनल बनाए और ये लिम्फ वेसल में चला गया, वहां पे इसका नाम लिम्फ पड़ गया. अब जब ये लिम्फ वेसल्स में फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये लिम्फ उठाकर इन्होंने आधा लिम्फ नोड्स को दे दिया. लिम्फ नोड्स में से दोबारा छोटे छोटे चैनल दोबारा से वहां पे डिवाइड हो गए. उन चैनल्स में अभी भी लिम्फ प्रेजेंट था, वही लिम्फ दोबारा एंटीरियर वेन्स, एंटीरियर मतलब बिल्कुल पास वाली, हार्ट के पास वाली वेन्स को दे दिया. दोबारा से ये कहाँ चला गया? राइट ऑरिकल में चला गया. राइट ऑरिकल से कहाँ गया? ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर गया. दैट्स इट. So lymph consists of your leukocytes, your blood platelets, your water 94%, proteins, fats, carbohydrates, enzymes and antibodies, and they are round about all these. वाटर को छोड़ के ये सभी इसमें 6% के होते हैं. ठीक है.
अब ये लिम्फ वेसल कौन कौन से हैं तुम्हारी बॉडी में? द लिम्फ वेसल्स दे आर प्रेजेंट इन योर राइट सबक्लेवियन वेन. सबक्लेवियन वेन आती है जहां पे तुम्हारी कॉलर बोन होती है. लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के पास भी होते हैं. इलियम, इलियम अगर तुम्हें याद होगा वहां पे, अगर डाइजेशन चैप्टर में अगर तुम्हें याद होगा तो इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टियल कॉम्प्लेक्स में. लैक्टियल कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फ प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए इलियम के पास भी तुम्हारे लिम्फ वेसल्स होते हैं. ठीक है, एक बार 9th क्लास की बुक ओपन करके देखना, लैक्टियल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना. The tonsils, every one of you have tonsils, and tonsils on the side of the neck are also the lymph glands. Whenever you have some kind of inflammation or a fever, तुम्हारे टॉन्सिल्स जो होते हैं स्वेल कर जाते हैं और ये एक इंडिकेशन है तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन का. सो दिस वाज अबाउट योर लिम्फ. Now talking about the functions of your lymph is, देखो lymph actually तुम्हारा सबसे important चीज है कि ये डिफेंस शो करता है, डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है. डिफेंस मैकेनिज्म कैसे शो करता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? तुम्हारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और WBCs होते हैं. तो WBCs बेसिकली तुम्हारे डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम आते हैं जब तुम्हारी बॉडी में कोई जर्म एंटर करता है या फिर यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. So at that time they leak out from the capillaries. These WBCs they leak out from the capillaries and they go and they do the diapedesis. ठीक है. एंड फॉर एग्जाम्पल एक और इसका एग्जाम्पल है जो तुम्हारे मोनोसाइट्स होते हैं. मोनोसाइट्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ योर WBCs. तो दे एक्चुअली हैं क्या? वो भी लिम्फ में प्रेजेंट है तुम्हारे. द लिम्फोसाइट्स ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यूज, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी पता चलता है कि तुम्हारे टिश्यू में कोई बैक्टीरिया आया है या फिर नहीं आया. ठीक है. दूसरा ये करते हैं तुम्हारे एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन में मैंने तुम्हें एक बात अभी बताई थी इलियम के बारे में. सो द फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फैटिक सिस्टम, और वी कैन से द लैक्टियल कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट इन योर इंटेस्टिनल विलाई. विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है ये. न्यूट्रिशन देता है ये. इट सप्लाइज द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहां पे ब्लड रीच नहीं करता, वहां तक ये न्यूट्रिशन देता है. कौन? लिम्फ. ठीक है. नाउ योर लास्ट टॉपिक इज योर स्प्लीन. तो स्प्लीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्प्लीन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये स्प्लीन के बारे में मैंने लिखा है. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट दैट स्प्लीन इज अ लार्ज लिम्फैटिक ऑर्गन. ये एक लिम्फैटिक ऑर्गन है. ठीक है. एंड इट इज अबाउट द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट. क्लेंच्ड फिस्ट के जितना होता है ये स्प्लीन. रेडिश ब्राउन इन कलर होता है. इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. एंड इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमेन, बिहाइंड द स्टमक के पीछे, एंड अबव द लेफ्ट किडनी. लेफ्ट किडनी के थोड़ा सा ऊपर होता है. डू नॉट टेक इट एज द पोजिशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स ओवर द किडनीज. ठीक है. ये आपकी लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है. किसकी बात कर रहे हैं हम? स्प्लीन की बात कर रहे हैं. सो द स्प्लीन एक्चुअली बेसिकली इट एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वायर. हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं. ठीक है. एंड इट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, क्योंकि जो वर्न आउट RBCs होती हैं, जो थकी पुरानी जो RBCs होती हैं, जो अपना काम कर चुकी होती हैं, वो स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ये जो पुरानी RBCs हैं वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होंगी, और जो दूसरी आपके नॉर्मल RBCs होंगे वो उनको अपने पास संभाल के रखेगा. इसीलिए इसे ब्लड रिजर्वायर कहते हैं. इन इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल हेमोरहेज. हेमोरहेज होता है लीकिंग आउट ऑफ द ब्लड. अगर क्लॉट नहीं बनता तब हेमोरहेज कंडीशन आती है. फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस और कार्बन मोनोक्साइड, CO मीन्स कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग. द स्प्लीन रिलीजेस द स्टोर्ड ब्लड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. इसीलिए इसे ब्लड रिजर्वायर भी कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It produces the lymphocytes. Lymphocytes, they are also very important because they do the defense mechanism. It destroys the worn out RBCs. ठीक है. और ये स्प्लीन के साथ साथ लीवर भी worn out RBCs को डिस्ट्रॉय करता है. And the very important point is स्प्लीन प्रोड्यूसेस RBC इन एम्ब्रियो. जब एम्ब्रियो कंडीशन में होता है, जब चाइल्ड एम्ब्रियो कंडीशन में होता है, तब उसमें स्प्लीन ही है जो RBC प्रोड्यूस करता है. ऑल्दो एडल्ट्स में कहाँ प्रोड्यूस करता है? बोन मैरोज में प्रोड्यूस करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर. Do let me know if you have understood or not, and if you have any kind of query, please let me know in the comment section. Okay, thank you so much and God bless you.